Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I get dirty money, super buzz, munda hai rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Munda top the brand, ag lagi hui stocks nu. Red Bull naal glassi khੰਭ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ thoughts ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ rent free ਪੋਲ ਡਾਂਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਓਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਓਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ Only boss moves, uche udas, the spaceship, trip to Mars, munda top bread, banging his shit, flying kisses on from everywhere. Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I get dirty money, super bars, munda hai rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire. Life ਸਾਡੀ rich ਟੋਟਾ ਦੇ ਰੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ money evil check your facts man ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਮੈਨ ਅਲਫਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਲੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ on a new level ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ I don't know where ਜੇ ਕੋ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸਿੱਟਦਾ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰੇਲ ਨਹੀਂ only thick chicks on radar fly ਕਰਾ private ਸੋਚਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ where ਕਿੰਨੇ ਅਫੇਅਰ Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I get dirty money, super bars, munda hai rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, that's right. Mote dinar, dirty money, super one and only. Munda hai rare, karda nahi care. Candy, I'm a motherfucking millionaire. Yeah, baby. देख के कतार डी करके प्यार कहदी हुणे नींद नहीं आउंदी पछताउंदी तू लाके यारी जट्टां दे मुंडे ना फिरे रोंदी नी गड्डियां ट्रैक ते मुंडे टोलियां बना के संद बैक ते नी थुकदा नी मोढे तो स्पिट करा मैक ते की मेरी महक ते महकां विच बजदा ए भौंकदी आ बैक ते क्यों समझ नहीं आउंदी पता चाहुंदी तू लाके यारी जट्टां दे मुंडे ना हुण कहंदी फिरे नींद नहीं आउंदी शक्कां रोटी वंड के ते बैरी रखा चंड के बड़े सानू निंद दे ते बड़े सानू भंड दे यार मेरे संद दे जबान सांभे यारियां ते बैरी थले दंद दे मेरी जमा लाउंदे नहीं आउंदे गली च बाह किथे तां हत्थ नहीं फड़ाउंदे तू हत्थ नहीं छड़ाउंदी पता चाहुंदी तू लाके यारी जट्टां दे मुंडी ना हुण कहंदी फिरे नींद नहीं आउंदी हत्थ पिया उदड़े रकाने वाले रफ ने टाइम थोड़े टफ ने उत्ते नूं तां ही कफ ने कहनाइयां पामरीडियां ना खेडदे बलाफ ने टीचरां दे जोगियां ते झोलियां च सप ने एले वाले देखिया तू दैले वाले देखे नी हुणे वाले देखिया तू पहले वाले देखे नी सोहणीए करारे तो अमरीका मेरे यार ने पंजाब वाले देखिया तू एले वाले देखे नी आप पूरे रंग ते तू लावे गल कंद दे पैरी नूं हरा के करां चौल भी वा खंड दे नी तां भी रहंदे पंड दे नी सानू बाच मिलदा पहला नी यार वंड दे माहौल पूरा बेबी हाय बेबी तू भावें काला सूट कदे कदे पावें नेवी तू रोज़ ही अजमाउंदी पता चाहुंदी तू लाके यारी जट्टां दे मुंडे ना हुण कहंदी फिरे नींद
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਮਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਾ ਆਟਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਵੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਕੀ ਸ਼ਹਿਆ ਲਾ ਕੇ ਢੀਕ ਪੀਜਾ ਸਾਗਰਾਂ ਪੀਣਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਆਂ ਤੂੰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਦ ਬੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਠੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸਪਿੱਟ ਕਰਾਂ ਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਮੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है और मेरी वीडियो क्लियर है, सबसे पहले तो चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें। हाँ जी, सभी सबसे पहले जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें अगर आप सभी के पास मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है। तो आज का सेशन दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी को बहुत अच्छा मैसेज और नॉलेज डिलीवर करने के लिए, है ना। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और जितने भी पर्सन इस मीटिंग में बैठे हैं तो मेरे को लगता है कि आज सभी को फॉरएवर क्लियर होने वाली है। जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन्स, डाउट, क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में चल रहा है, एक पर्सन जब फॉरएवर को देखता है उसके बाद उसके माइंड में बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस चलते हैं। तो आज आपको फॉरएवर आर पार होने वाली है। तो एक्साइटेड है सभी? हाँ जी,
सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके जी, ओके। तो बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सिर्फ इस मीटिंग का फायदा वो लोग उठाएंगे जो क्या करेंगे, वीडियो ऑन करके चैट बॉक्स में एक्टिव रह के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे एक एक चीज को, जो जो भी यहाँ पर सर डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो सभी ने अटेंटिव होकर बैठना है, क्योंकि देखो मीटिंग में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, मीटिंग को अटेंटिव होके लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करना और समझना सबसे बड़ी बात है ना। तो शॉर्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम गुरलीन है और बेसिकली मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने फॉरएवर बिजनेस को शुरू करा था। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बट जैसे ही एक्साइटेड थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस में भी थी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी थे मेरे माइंड में फॉरएवर को लेके। बहुत सारे चैलेंजेस आए, उस चैलेंजेस को फेस कर करके मैंने फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया। स्टार्टिंग में इतना भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ। तो आज मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो आज का जो सेशन है वो हमारा है कि हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं सवाल आपके जवाब हमारे। तो आज आपको एक एक क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं। और आपको पता है आज के होस्ट कौन है? हाँ जी, कोई वो करेगा, गेस करेगा कौन आज के होस्ट कौन है? सभी को ऑलमोस्ट पता ही है ना, पोस्टर तो देख ही लिया होगा। तो आज के सेशन को जो होस्ट करेंगे अमन सर करेंगे, और मैं सर से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी, क्वेश्चंस पुट करूंगी जो भी आपके माइंड में चलते हैं। और सर आज हमें बहुत बेस्ट आंसर देने वाले हैं, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन जाएगा फॉरएवर को करने का। मेरे को पता है सभी बहुत एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले तो हम सर को इनवाइट करते हैं इस मीटिंग में, तो उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, वेलकम है सर। अमन सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस हाँ आ जी रही है वॉइस आपको? क्लियर आप। ओके जी, ओके। तो सर टीम हाँ बहुत जी हाँ जी। एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, तो आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल। गुड इवनिंग जी सबको। सबसे पहले आप सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम है आपका आज की इस ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पे आपको है ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है फॉरएवर को लेके, राइट ना जी। क्योंकि जहाँ तक मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, जब है ना माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी, मैं करना क्या है भाई, ये बताओ क्या करना है, राइट। माइंड में क्वेश्चन आता है ना, क्या करना है कैसे करना है, राइट। तो आज का जो हमारा पूरे का पूरा टॉपिक रहेगा ना, जो भी हम बातें यहाँ पे है ना शेयर करेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगाई होंगी, काफी कुछ सीखा होगा है ना। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। वो चीज आज आपको इस ट्रेनिंग में पता चलेगी आने वाले 1 घंटे के अंदर। हर एक पर्सन ना जी अपने सारे जो भी आपके कंफ्यूजन्स आती हैं, हर बंदे को आती हैं, नॉर्मल बात है। तो वो कन्फ्यूजन्स आज हमने क्लियर कर लेनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई वही है, बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं होती है। तो आपके माइंड में भी जो कन्फ्यूजन चल रही हैं आज आपकी वो सारी क्लियर हो जाएंगी, और आपको बहुत आसान रहेगा फॉरएवर को स्टार्ट करना। क्लियर है ना जी। करें फिर स्टार्ट ट्रेनिंग को। रेडी हैं सभी? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करो आप। ओके ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जितने भी नोवस कस्टमर हैं है ना, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं, तो अटेंटिव होकर बैठना। तो आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे यही है कि जब हम फॉरएवर को देखते हैं और फॉरएवर को देखने के बाद बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं है ना, बट कहीं ना कहीं जैसे मार्केट के हालात चल रहे हैं आज के टाइम पे है ना, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज आती हैं, बहुत सारी कंपनी चले जाती हैं है ना। तो हमारे माइंड में ना एक क्वेश्चन रह जाता है कि फॉरएवर भी उस कंपनी की तरह तो नहीं है, फॉरएवर भी कहीं फ्रॉड तो नहीं है। फॉरएवर को कैसे चूज करें और फॉरएवर का सबसे बेस्ट चीज क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई भी इंसान है ना फॉरएवर बिजनेस को देखता है, जैसे मैंने देखा था, आप सबने भी देखा है स्टार्टिंग में, तो हर बंदे के माइंड में आता है कि यार भाई फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, भाई ये क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। और अगर हमारे माइंड में नहीं आता तो हमारे घर वाले हमारे माइंड में डाल देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज आती है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। क्लियर सी बात है ना जी। तो जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था, क्योंकि कंपनी वर्ड सुनते ही ना हमारे माइंड में आता है भाग ना जाए, क्योंकि जॉब माइंडसेट होता है ज्यादातर लोगों का, बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है। तो कंपनी वर्ड सुनते ही एक चीज आती है, भाई कहीं यार फ्रॉड ना हो जाए। तो मैंने जब ये चीज पूछी, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया,
तो मैंने वहां पे अपने सीनियर से क्वेश्चन किया कि मैं क्या, अगर ऐसा हो गया तो उन्होंने ना मेरे से एक आसान सा सवाल पूछा था। मैं आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, कि मान लो कोई भी फ्रॉड कंपनी है या कोई फ्रॉड काम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक चल सकता है? मतलब आप क्या इसके बारे में विचार रखते हो मैम? मान लो अगर कोई फ्रॉड काम है, कोई फ्रॉड कंपनी है, आपके हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चल पाएगा? मेरे हिसाब से तो सर 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 महीने? मतलब 90%, 99% लोगों के माइंड में यही आंसर आया होगा कि भाई 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, राइट? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। तो जब मैंने फॉरएवर को स्टडी किया, इसके बैकग्राउंड को स्टडी किया, कि भाई यह कंपनी तो 160 देशों में चल रही है और 45 साल से चल रही है, क्योंकि उस टाइम 45 साल हुए थे, अब तो 47 साल होने वाले हैं ना। 13 मई को हमारी कंपनी को पूरे 47 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं क्या, इतनी पुरानी कंपनी है, सिंपल सी बात है, तो यार इतने समय तक तो कोई फ्रॉड काम नहीं चल सकता। ये बात मैंने अपने पापा से भी पूछी थी। मैं क्या, इतने लंबे समय तक अगर कोई कंपनी चल रही है, क्या आपको लगता है फ्रॉड है? कह रहे नहीं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि चलो मान लेते हैं इंडिया में चल रही है 47 साल से ना। इंडिया में आपको पता है पैसे पूसे दे के भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन दूसरे देशों में, मान लो जैसे यूएसए जैसी कंट्री है, जापान जैसी कंट्री है ना, कनाडा जैसी कंट्री है, जहां पे रिश्वत का नामो निशान नहीं है, तो ऐसी कंट्री में अगर फॉरएवर चल रही है, वो भी 160 देशों में, तो यहाँ पे अगर एक लाइन में देखा जाए, मतलब 160 देशों की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने फॉरएवर को अलाउ किया हुआ है। तो ये काम फ्रॉड हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ जी? मतलब माइंड में एक चीज तसल्ली हो गई कि भाई 46 साल पुरानी कंपनी 160 देशों में चल रही है स्टेबल तरीके से। 4000 से ज्यादा फॉरएवर के ऑफिस हैं खुद के, पूरी दुनिया में, जहां पे हम विजिट भी कर सकते हैं। इंडिया की मैं बात करूं, दिल्ली में हमारा ऑफिस है, गुड़गांव में ऑफिस है, लखनऊ, मेरठ, जम्मू, जलंधर, मोहाली, आसाम में गुवाहाटी में हमारा ऑफिस है। इंडिया में हमारे 23 ऑफिस हैं। तो भाई जेन्युइन कंसेप्ट है। तो मेरे माइंड में भी ये चीजें आई थी, बट मैंने इस चीज को स्टडी किया। और सबसे जरूरी बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सुन के ना विश्वास कर लेते हैं, पर हम उनमें से नहीं हैं। हम सुन के विश्वास नहीं करते, हम सुन के उस चीज की तहकीकात करते हैं कि वो सच है या नहीं। जब मेरे को बताया गया कि ये काम 160 देशों में चल रहा है, तो मेरे ताऊ जी के लड़के पुर्तगाल में रहते हैं, मैंने उनसे कॉल करके पूछा, मैं क्या भाई फॉरएवर नाम की कंपनी का ऑफिस है यूरोप के पुर्तगाल देश में? कह रहा है भाई अभी तो मैं बाहर हूं, बट मैं आपको बताऊंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को बताया, कह रहे ऑफिस है। मेरी बुआ जी का लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी शहर के अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या क्या ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर के अंदर फॉरएवर का ऑफिस है? उन्होंने बोला हाँ है, मतलब पता करके बताया, कह रहा है। तब मेरा ट्रस्ट बना कि भाई है ना, फॉरएवर 160 देशों में काम कर रही है। तो इतनी बड़ी कंपनी पे अगर कोई शक कर रहा है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, मतलब समझदारी की निशानी नहीं है। हाँ, शुरू में सबको लगता है, पर सब कुछ पता होने के बाद भी अगर लग रहा है, तो फिर ये चीज है। तो हाँ जी, होप सो आप सभी का ये क्वेश्चन जरूर क्लियर हुआ होगा, है ना। तो बहुत अच्छे से सर ने इसको कोलैबोरेट करा, है ना। आपको क्लियर हो चुका होगा कि फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, ठीक है। और जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम फॉरएवर को देखते हैं, है ना, और आपको पता है फॉरएवर एक बिजनेस है, और ये जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, और हर बिजनेस में एक प्रोडक्ट नाम की चीज तो होती ही है ना। तो जब एज अ गर्ल, मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो मैं एक लड़की थी, है ना। तो मैंने वहां पर प्रोडक्ट को देखकर ना एक चीज मेरे माइंड में बैठ गई थी कि यार ये बेचना तो नहीं पड़ेगा, लाइक मेरे को कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आप इसके ऊपर क्या रीजन देंगे कि फॉरएवर एक प्रोडक्ट सेलिंग काम है या नहीं? देखो, मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं, कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के नहीं होता है। पर शायद आज तक हमारे घर पे करीना कपूर जी कभी लक्स साबुन बेचने नहीं आए होंगे। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, पर प्रमोशन तो वो भी कर रहे हैं, राइट? मतलब एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के 3 तरीके होते हैं, ध्यान से समझना। पहला होता है कि हम डोर टू डोर सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हम दुकान खोल के उसको सेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एड जिसको बोलते हैं।
जैसे अमिताभ बच्चन जी करते हैं नवरत्न तेल की ऐड, विराट कोहली करते हैं, है ना, किसी चीज की, या महेंद्र सिंह धोनी टीवीएस बाइक की कर रहे हैं, ऋतिक रोशन कोको कोला की ऐड कर रहे हैं। ऐसी कोई ना कोई सेलिब्रिटी ऐड कर रहा है, बट वो हमारे घर पे बेचने नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं शेयरिंग करना, बताना। तो अगर मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा मेनली काम रहता है वो बेचने का नहीं रहता है, बताने का रहता है। पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्यों आता है कि बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है, आप सबकी मेरी, है ना, वो जॉब के हिसाब से हुई है कि भाई हमें पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करनी है, जॉब करनी है। कभी हमारे घर पे ऐसी बातें नहीं चली होंगी कि तुमने 50 करोड़ की कंपनी बनानी है, तुमने 100 करोड़ की कंपनी बनानी है ना, ऐसी चीजें नहीं सुनी है हमने। हमने सुना है कि भाई तेरे को ये वाला एग्जाम क्लियर करना है, तेरे को यहाँ कोचिंग लेनी है, तेरे को ये पेपर क्लियर करना है। तो सोच जो बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में। ऐसे ही प्रोडक्ट सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में आता है यार बेचना तो नहीं पड़ेगा। सो मैं आपको अगर बताऊं, अगर ये बेचने का काम होता तो हम यहाँ बैठ के भाषण क्यों देते, हम भी कहीं पे सामान बेच रहे होते। क्लियर सी बात है ना जी। मतलब मैं यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझाने के पैसे आ रहे हैं, बेचने से पैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब ये बिजनेस एजुकेशन शेयर करने का है, बिजनेस शेयर करने का है, प्रोडक्ट शेयरिंग करने का है, सेलिंग का नहीं है। ये बात मेरे को क्लियर हो गई थी। पर हाँ, शुरू में मेरे को भी लगता था कि बेचना पड़ेगा, हर इंसान को लगता है, पर बेचना नहीं है, ये चीज है। बिल्कुल सही बात है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरे को भी यही लगता था कि यार ये बिकवाएंगे प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये शेयरिंग का काम है, ठीक है। तो इसी के मिलता जुलता सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम इस बिजनेस को देखते हैं, है ना, ऑनलाइन वर्क को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिजनेस में ना हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, या जोड़ना पड़ेगा, या हमें चैन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का ना एक मिथ बन चुका है। लोग ना एक प्रोफेशनल वर्क को भी इस नजरिए से देखते हैं कि यहाँ चैन सिस्टम है क्या, या हमें चैन बनानी पड़ेगी। तो सर आप इसके इसके ऊपर क्या आंसर देंगे कि ये कौन सा वर्क है और उसको प्रोफेशनली कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो ना मेरे को बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आया था जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। क्योंकि ना ऐसा हुआ था मेरे साथ स्टार्टिंग में कि 4-5 दिन हो गए थे मेरे को ट्रेनिंग लगाते हुए, पर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था मेरे को करना क्या है, एग्जैक्ट क्या करना है। तो मैं अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहा था कि ये तो नहीं करना है, ये तो नहीं करना है। हर इंसान अपने तरीके से सोचता है जब उसको आंसर नहीं मिल रहा होता है। तो मैंने अपने सीनियर से सवाल किया, मैं कहा यार यहाँ बंदे जोड़ने वाला काम है क्या, मतलब चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने हैं क्या। तो उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा कि भाई बंदे जोड़ना क्या होता है, मतलब कैसे बंदे जोड़ने वाला क्या काम, मतलब। मैं कहा यार जिसमें लोगों को बताना होता है। कह रहे ऐसा कौन सा काम है जिसमें लोग ना हो, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बंदे ना हो। क्लियर है कोई ऐसा काम आपकी नजरों में जिसमें लोग ही नहीं है, जिसमें बंदे ही नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में पूछूं कि भाई बंदे जोड़ने को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसको टीम वर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, टीम वर्क। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, या तो वो टीम बनाकर काम कर रहे हैं, या वो किसी और की टीम में काम कर रहे हैं। अगर तो वो टीम बनाकर काम कर रहे हैं उसको बिजनेस बोला जाएगा, अगर वो किसी और की टीम में काम कर रहे हैं उसको जॉब बोला जाएगा। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। तो अगर हमें बिजनेस करना है तो सिंपल सी बात है, लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, अकेला इंसान तो कभी व्यापार नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं, आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हो, आपके पास जो भी सिम है, जिस भी नेटवर्क की, कौन से नेटवर्क की सिम है, मान लो आपके पास जियो की सिम है, तो जियो की सिम आपके घर पे मुकेश अंबानी जी देने आए थे? मुकेश अंबानी जी देने आए थे क्या? नहीं, उनके नेटवर्क के थ्रू ही तो पहुंची ना, उन्होंने एक टीम बना रखी है अपनी सिम को आप तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, आपके घर पे जो नमक यूज होता है टाटा का, अब तो चलो रतन टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे, है ना, एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे। पर जब वो थे, क्या वो आपके घर पे नमक देने आते थे? नहीं आते थे। समझ पा रहे हो पॉइंट। बिजनेसमैन क्या होता है, वो हमेशा टीम बनाकर काम करता है। अब टीम क्यों बनाता है बिजनेसमैन, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि बिजनेस को अकेले नहीं किया जा सकता है, बिजनेस को अकेले नहीं किया जा सकता। बिजनेस करने के लिए लोगों की जरूरत है। जब आप किसी कंपनी में जाते हो जॉब लेने, किसी कंपनी में गए आप, वहां पे आप अकेले काम करोगे? नहीं, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग लोग हैं, मार्केटिंग के अलग हैं। चाहे आप स्कूल में चले जाओ, पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं,
और जो पोछा मारने वाले स्टाफ होता है ना, साफ सफाई वाला, वो अलग है। मतलब कोई भी काम बिना टीम के नहीं किया जा सकता। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस बिना टीम के नहीं किया जा सकता। अब इसको चेन क्यों बोला जाता है ये भी बता देता हूं मैं। क्योंकि मार्केट में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें सच में चेन सिस्टम होता है, बट फॉरएवर एक ऐसा काम नहीं है। चेन सिस्टम का मतलब होता है दो के नीचे दो लगाने वाला काम, मनी सर्कुलेशन, पैसे लगा के पैसे कमाना, है ना, इन्वेस्टमेंट करके, वो होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको सेम नजरिए से देखते हैं फॉरएवर को भी। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। तो उनको लगता है यार ये भी वही चीज है, इसमें भी मेंबर है। भाई वो अलग चीज है। मतलब यहाँ पे हमने किसी को कन्वेंस नहीं करना है। अब यहाँ 500 लोग बैठे हैं, मैं यहाँ 500 लोगों को कन्वेंस कर रहा हूँ बैठ के? नहीं, मैं तो क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। एक होता है कन्वेंस करने, एक होता है गाइड करना। हमारा काम गाइड करने का है, हमारा काम कन्वेंस करने का नहीं है। चेन सिस्टम नहीं है, टीम वर्क है। और बिना टीम के कोई काम नहीं होता। अब पुलिस में क्या होती है? टीम। आर्मी में क्या होती है? टीम। आर्मी में भी टीम होती है। किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक टीम काम कर रही है। और जहां टीम नहीं है वहां काम नहीं है। अब आपने कहावत सुनी होगी, बिजनेस वहां चलता है जहां भीड़ होती है, जहां लोग होते हैं। दिल्ली में कोई भी बिजनेस चल जाता है, क्यों? क्योंकि लोग हैं। बिना लोगों के व्यापार होना मुश्किल है, बिजनेस होना मुश्किल है। तो ये तो थिंकिंग ही गलत है ना। ये तो थिंकिंग गलत है। क्योंकि जितनी बड़ी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, वो दुनिया के चौथे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। पूछो क्यों है? क्योंकि 200 करोड़ लोग फेसबुक चलाते हैं, इसलिए है। अगर 200 करोड़ लोग फेसबुक डिलीट कर देंगे तो मार्क जकरबर्ग का नाम कहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब उनके पास 200 करोड़ लोगों की क्या है? टीम है। तो बिना टीम के बिजनेस नहीं हो सकता। मेरे को भी लगता था कि भाई चेन बनानी पड़ेगी क्या, ये सब कुछ है ना। बट दोस्तों ये एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ना जॉब माइंडसेट की बातें हैं। बिजनेस बिना लोगों के नहीं होता है। जब एक बिजनेसमैन के सामने आप टीम की बात करते हैं ना, वो पता क्या बोलता है? मैं दुनिया की बेस्ट टीम बनाऊंगा, बेस्ट टीम बनाऊंगा। जब एक जॉब वाले के सामने टीम की बात होती है, अच्छा बंदे जोड़ने पड़ेंगे। माइंड सेट की प्रॉब्लम है। टीम तो है ही है हर जगह, राइट? तो ये चीज है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है ना। तो होप सो आप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे सभी एक्टिव हैं? सो तो नहीं गए खाना खुना खा के? सभी एक्टिव है? चैट बॉक्स में बताएंगे एक बार। हाँ जी। ओके जी। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आप सभी के? हाँ जी। ओके जी, ओके जी, ओके, एक्साइटेड, ओके ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो और होप सो आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही फेवरेट है ना। तो मेरे को जब सर ने इस बिजनेस का बताया था, मेरे जो अपलाइन है कॉमन सर ही है। तो जब सर ने मेरे को इस बिजनेस का बताया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एक्साइटेड मतलब दिल में ये आ रहा था, ओहो क्या प्लेटफॉर्म मिल गया है, मैं यहाँ पे ग्रोथ भी ले लूंगी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, है ना। एक मन में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं हम, है ना। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट थी, मैंने ज्वाइनिंग भी करी, मैंने सब कुछ करा, मैं कहा मैं तो इस बिजनेस को करूंगी स्टार्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होके ना सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपनी फैमिली के पास। और जब हम फैमिली को बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वहां पर आपको पता है कि उनका रिस्पॉन्स क्या हो जाता है? नेगेटिव। कईयों का पॉजिटिव भी होता है। बट जब मैंने अपनी फैमिली को इस बिजनेस के बारे में बताया था तो वहां पर मेरे को एक ही रिस्पॉन्स मिला था, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम फॉरएवर इतनी बढ़िया है, फॉरएवर का बैकग्राउंड इतना बढ़िया है, फॉरएवर को इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? 90% लोगों की फैमिली मना क्यों करती है? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि भाई फैमिली मना क्यों कर रही है, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम यूएसए में पैदा होते, अमेरिका में, तो वहां 48% लोग बिजनेस को प्रेफरेंस देते हैं। आपने ये चीज नोट करना। हमारे यहाँ पे 99% लोग जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हर जगह का कल्चर है, अलग अलग है। फैमिली के पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने के दो रीजन हैं, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स होने के दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या है कि भाई हमारी फैमिली का ना बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, या तो उन्होंने किसी ऐसे काम में किसी को फेल होते हुए देखा है, या कई बार ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ, उनके ही पेरेंट्स ने किसी कंपनी में ट्राई किया होता है।
बट उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। या किसी रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने ट्राई किया होता है, उनको सक्सेस नहीं मिली होती है, तो माइंड में एक बैड इमेज होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि हमारे घर वालों को पता ही नहीं है किस टाइप का काम है, नॉलेज ही नहीं होती, 1% भी पता ही नहीं है क्या है कैसे है। तो वहां पे जब कोई ऐसा काम हम फैमिली के सामने रख रहे हैं जिसकी उनको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं उसके बारे में, तो फैमिली को लगेगा यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, फैमिली को लगेगा कहीं बच्चा गलत ट्रैक पे ना चला जाए। तो अगर फैमिली के नजरिए से देखा जाए, वो भी अपनी, अब मेरे पापा एक किसान है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, मैंने अपने, है ना, पापा को शेयर किया मैं कैसे ऐसे काम है। मेरे पापा को समझ ही नहीं आया भी ये कौन सा काम है। कह रहे ये कैसा काम है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे मैम हम 6 महीने इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, इतने पैसे तो हमें नहीं आते। अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो सब लोग यही कर लेते, हम इतने लोग खेती बाड़ी क्यों कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे को देने शुरू कर दिए। तो मेरे को वहां पे एक बात क्लियर हुई, यार जो बातें मैं समझ पा रहा हूं ना, मेरी फैमिली नहीं समझ पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही फैमिली? क्योंकि जो ट्रेनिंग मैं लगा रहा हूं वो ट्रेनिंग मेरी फैमिली नहीं लगा रही है। पहला रीजन, मेरी फैमिली ट्रेनिंग थोड़ी लगा रही है, उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। तो फैमिलीज नेगेटिव नहीं होती हैं, फैमिलीज को नॉलेज नहीं है। लोग है ना, वो अलग अलग प्रोफेशन से हैं, किसी के पापा जॉब कर रहे हैं, किसी के पापा लॉयर हैं, टीचर हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं। अब ये बिजनेस जो है वो बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप स्नैपचैट चलाते हो? हाँ जी मैम, आप स्नैपचैट वगैरह यूज करते हो? वैसे करी होगी आपने, नहीं सर, पहले करती थी, अब नहीं। मतलब करा तो है ही है, यूज करना तो हाँ आता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी मदर को? नहीं, मदर को नहीं आती। इसका मतलब स्नैपचैट गलत है? नहीं। स्नैपचैट एक न्यू जनरेशन की ऐप है, एम आई राइट? ऐसे ही फॉरएवर न्यू जनरेशन का पैसे कमाने का एक तरीका है, जैसे पुराने जमाने में जॉब थी। पुराने जमाने में जॉब एक पैसा कमाने का सेफ तरीका था, आज एक बिजनेस पैसा कमाने का सेफ तरीका है, राइट? तो पर वो चीज वो तो जनरेशन गैप आ गया। अब जनरेशन गैप आ गया तो फैमिली कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। क्लियर है जी? तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है इस चीज का, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली को समझ में आए? मान लो आप हो, आप अपने पापा को बोलो कि पापा मेरे को ब्यूटी पार्लर का काम करना है। आपके पापा पूछेंगे ओके कितने पैसे लगेंगे, आप बोलो 10 लाख रुपए लगेंगे। तो आपके पापा आपसे क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई क्या काम है, कैसे है, हाँ या ना, करेंगे क्वेश्चन। अगर आप वहां पे बोलो मेरे को कुछ नहीं पता, 10 लाख रुपए दो, क्या वो देंगे? मतलब ब्यूटी पार्लर के बारे में कुछ नहीं पता आपको, 1% भी नॉलेज नहीं है, और आप पैसे मांग रहे हो घर से, देंगे क्या? वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको पता है, आप अपने पापा को समझाओ, पापा देखो स्क्रब 1000 रुपये लूंगी मैं स्क्रब करने के, 500 रुपये मेरा खर्चा आएगा, 500 मेरे बच जाएंगे। रिबॉन्डिंग करने के मैं 5000 रुपये लूंगी, 3000 रुपये बचेंगे। फेशियल करने के मैं 5000 लूंगी, 2000 रुपये बचेंगे। ब्राइडल सजाने के 15,000 लूंगी, 10,000 बचेंगे। अगर 5 ब्राइडल आ गई एक महीने में, 50,000 रुपये बच गए। अगर 20 बंदों का फेशियल करा, 60,000 रुपये बच गए। अगर 20 बंदों की रिबॉन्डिंग करी, 40,000 रुपये बच गए। कितने हो गए? 1,50,000 रुपये। ऐसे पापा मेरे महीने की इनकम 2 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें से मेरा बिजली का बिल, रेंट, ये सारा कुछ इतना जाके मेरे को 1 लाख रुपए बचेंगे। अब आपके पापा क्या बोलेंगे? चलो ठीक है देख लो, ये फर्क है। अब जैसे हम फॉरएवर बिजनेस में आते हैं, हमारे घर वाले पूछते हैं करना क्या है, कह रहे कुछ नहीं करना, एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है, बंदे जोड़ने हैं। घर वाले कहते हैं रहने दे बस, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। जब हम सही तरीके से समझाएंगे, फॉरएवर एक 46 साल पुरानी कंपनी है, 160 देशों में चल रही है ना। फॉरएवर के 4,000 ऑफिस हैं, इसमें हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेंगे। इसके प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट्स के यूजेस क्या है, आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी, इसमें पैसा कैसे आता है, कितने टाइप की इनकम आती है, किस किस लेवल पे कितनी इनकम कमा सकते हैं, ग्रोथ की परसेंटेज क्या है, ग्रोथ की अपना, है ना, कितने हम ग्रोथ ले सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे, तो फैमिली क्यों नहीं एग्री करेगी? तो कहीं ना कहीं फैमिली का कसूर नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम इसको सही तरीके से सीख के बताएं तो फैमिली एग्री करती है। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच सर। और होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन का सबसे मेन क्वेश्चन हमारा यही आता है कि, है ना,
काफी सारे लोग फैमिली के बिना कुछ भी नहीं करते है ना, सभी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनको बता नहीं पाते हैं। तो होप सो आपको एक अच्छा आंसर मिला होगा कि हमें फैमिली को कैसे हैंडल करना है और फैमिली के साथ कैसे डील करना है। क्लियर है ना? तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी सारे लोग मेरे को भी पूछते हैं ये क्वेश्चन, और मे बी सभी एएस, सभी सुपरवाइजर, सभी के पास ये क्वेश्चन आता ही आता है, डेली क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन मेरा सबसे ज्यादा था जब मैंने इस बिजनेस को देखा था। मेरे अंदर पेशेंस लेवल तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक्साइटेड हो जाता है बंदा। मेरे को तो ये होता था कि जल्दी बता दो सर काम क्या करना है। मैं ट्रेनिंग्स भी लगाती थी, मेरे को सब कुछ समझ भी आ रहा था कि ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सर हमारे माइंड में ये रहता है, जब भी कोई एक न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, उसके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सब कुछ क्लियर हो रहा है बट ये नहीं क्लियर होगा कि काम क्या करना है। तो हमें एक स्पेसिफिक आंसर दो कि जिसमें पता लगे कि काम क्या करना है फॉरएवर। अच्छा, तो ये तो वैसे मेरा भी क्वेश्चन था, ये काम क्या करना है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसका एक लाइन में आंसर दूं, तो आप एक काम करो, आप मेरे को देख लो मैं क्या कर रहा हूं। देख लो मेरे को मैं क्या कर रहा हूं, यही आपको करना है अगर एक लाइन में समझा जाए। मतलब फॉरएवर में ना हमने तीन चीजें करनी है जी, ध्यान से सुनना, लिख लेना, दिमाग में डाल लेना। क्या करना है? तीन चीजें करनी है। सबसे पहले हमने इस काम को सीखना है। सबसे पहले हमने इस काम को सीखना है। दूसरा, हमने इसको करना है। दूसरा, हमने इसको करना है। तीसरा, हमने इसको सिखाना है। तीन काम करने हैं। सीखना है, सीख के उसको करना है, और फिर सिखाना है। अब इसको डिटेल में समझा देता हूं। क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है फॉरएवर 46 साल से क्यों चल रही है, 160 देशों में क्यों चल रही है, फॉरएवर के प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मार्केट में जो कंपनियां हैं, फॉरएवर जो कंपनी है, इसमें क्या डिफरेंस है। फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, 11 तरीके की इनकम कौन कौन सी है, उसके नाम: रिटेल प्रॉफिट, कैशबैक, रेफर कमीशन, वॉल्यूम बोनस, बूस्ट बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, कार प्लान, ईगल मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस। हमें डिटेल में समझना है ये क्या है, कैसे ये इनकम आती है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा क्या है। क्लियर है जी? एलोवेरा कितने टाइप का होता है? 400 प्रजातियां होती हैं। 375 ऐसी हैं जिनको खाओ ना खाओ कोई फायदा नुकसान नहीं है, 385। 10 ऐसी हैं जिनमें जहर वाले गुण हैं। 5 ऐसी हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सबसे टॉप है एलो बारबा डेंसिस मिलर, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं: MNC, मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक। फॉरएवर अपना एलोवेरा स्टेबलाइज तरीके से बना रही है। क्यों? क्योंकि जब हम हॉट तरीके से बनाते हैं, हॉट प्रोसेस से बनाते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए फॉरएवर अपना एलोवेरा कोल्ड प्रोसेस से बना रही है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पेटेंट हैं। उनको बनाने का फॉर्मूला पेटेंट क्यों है? तभी कोई कंपनी हमारे प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना सकती। हमारे प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बन सकता, जैसे आईफोन की कॉपी नहीं बन सकती। फॉरएवर वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि 95% काम फॉरएवर खुद कर रही है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 6000 शिप कंटेनर हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए। हमारे 4000 ऑफिस हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए। हमारी कंपनी एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर है। हमारे खेत खुद के हैं, प्रोडक्शन खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, प्रोडक्शन प्लांट खुद का है। सारा कुछ कंपनी खुद कर रही है, और जिस भी सेगमेंट में डील करती है टॉप के प्रोडक्ट बनाती है। इन्फोनाइट स्किन केयर में दुनिया का बेस्ट ब्रांड है फॉरएवर की जो स्किन केयर है, इन्फोनाइट। दुनिया के बेस्ट अवार्ड इन्फोनाइट को मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 80% फीमेल्स बैठी हैं, उनको इन्फोनाइट का पता ही नहीं होगा भी फॉरएवर में इन्फोनाइट क्या चीज है। मतलब क्या है कि भाई ये जो चीजें हैं ना, आप कह रहे हो भी है ना भी सेल्फ डाउट हो गया, या भी काम क्या है? काम सिंपल है, सीखना है, सिखाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सिखाना चाहते हैं पर सीखना नहीं चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। हम बताना चाहते हैं पर सुनना नहीं चाहते हैं। क्लियर सी बात है ना जी? हम टीचर तो बनना चाहते हैं पर स्टूडेंट नहीं। हम पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये पॉसिबल नहीं है।
दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। क्लियर सी बात है ना जी। मेहनत पहले आती है, एजुकेशन पहले आती है, समझ में बाद में आता है। लोग सोचते हैं हमें काम समझ में पहले आ जाए, ट्रेनिंग हम बाद में लगा लेंगे। ये तो वही बात हो गई, मतलब डिग्री बाद में ले लेंगे, मतलब नहीं, स्टडी बाद में कर लेंगे, डिग्री पहले मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग लगाने से ही काम समझ में आएगा। अगर एक लाइन में समझ में आता होता ना जी, तो आपको यहाँ पे 8-10 दिन की ट्रेनिंग देने का हमें शौक नहीं है, या मेरे को भी किसी को शौक नहीं था 8-10 दिन की ट्रेनिंग देने का। क्योंकि कोई भी काम एक लाइन में समझा नहीं जा सकता है। एक लाइन में तो एक ही चीज समझी जा सकती है, भी तेरे बस का नहीं है, बात खत्म। एक लाइन में तो यही समझाया जा सकता है, ये नहीं समझाया जा सकता होगा कैसे। इसके लिए तो टाइम लगेगा। अगर टाइम है तो बढ़िया है, नहीं है तो नहीं सही। क्योंकि देखो, अब मैं आपको बोलूं भाई मेरे को खाना बनाना सीखना है, आपको आता है वैसे मैम कुकिंग करना? हाँ जी सर। ठीक है, आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में खाना बनाना सिखाओ मेरे को। वो तो पॉसिबल है पॉसिबल? 10 मिनट में सिखा दो खाना बनाना? मतलब एक फ्रेशर को नहीं सिखा पाएंगे, हाँ। टाइम लगेगा। तो अगर 10 मिनट में खाना बनाना नहीं सीखा जा सकता, तो 10 मिनट में जिंदगी कैसे बनेगी वो सीख लोगे आप? सोचने वाली बात है। खाना बनाना सीखने में अगर 4-5-10 दिन लगते हैं, तो लाइफ कैसे बनानी है, एक लाइफ को बेटर वे में कैसे बनाना है, ये एक लाइन में सीखना चाहते हैं लोग। उनको देख के तो मेरे को ऐसा लगता है, शुक्र भगवान ने ये दिमाग हमारे अंदर नहीं डाला, शुक्र है बस इस बात। क्लियर है ना जी। तो पेशेंस और ट्रेनिंग के साथ समझ में आएगा करना क्या है। वैसे तो मैंने 3 शब्दों में बता दिया, सीखना है, करना है, सिखाना है। अब क्या सीखना है वो ट्रेनिंग बताएगी, क्या करना है वो ट्रेनिंग बताएगी, क्या सिखाना है वो ट्रेनिंग बताएगी। समझ आ गई बात? अब मत पूछना क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसी के मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो काफी सारे लोग ना इस बिजनेस में आते हैं, जो न्यू फ्रेंड्स होते हैं है ना, ज्वाइन करते हैं फॉरएवर को। तो वो बोलते हैं सीधा सीधा बताओ कि करना क्या है, हमें ट्रेनिंग लगाना बोरिंग लगता है। काफी सारे लोग ट्रेनिंग्स नहीं लगाते हैं। तो ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और फॉरएवर बिजनेस में, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना वैसे आप सबको बढ़िया लग रहा है एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई दिल पे मत लेना, वह तरीका यही है, ठीक है ना, समझाने का। तो इसकी सिंपल सी बात है, जो काम हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं बताता हूँ मेरे को क्या इंटरेस्टिंग लगता है। सोना इंटरेस्टिंग लगता है, दूसरा मेरे को मूवीज देखना इंटरेस्टिंग लगता है, गेम्स खेलना मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा इधर उधर की बातें करना, घर वालों से दूसरों की चुगलियां करना, ये भी इंटरेस्टिंग है ना। ये सारी बातें इंटरेस्टिंग है, पर इनको करके सक्सेस नहीं मिलती, पैसा नहीं आता है, राइट। जितने भी दुनिया में इंटरेस्टिंग काम है, उनको करने से पैसा नहीं आता, सक्सेस नहीं मिलती। अच्छा, जो बोरिंग काम है, जैसे मैं बता देता हूँ, ट्रेनिंग लगाना बोरिंग है, फॉरएवर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बुक्स पढ़ना बोरिंग है, ट्रेनिंग देना भी एक तरीके से मेहनत का बोरिंग प्रोसेस ही है ना। ये जो काम बोरिंग है, मतलब कॉलिंग करना, ये करना, सीखना नई नई चीजें है ना, ट्रेनिंग्स, मतलब और यहाँ तक कि भगवान का भजन सुनना, वो भी एक बोरिंग प्रोसेस है। पर ये सारी चीजें हमें लाइफ में आगे लेके जाती है। भगवान ने इंसान को इस तरीके से बनाया है कि अगर वो बोरिंग काम करेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, इंटरेस्टिंग काम करेगा तो फेलियर हो जाएगा। इसीलिए आप देखना, दुनिया में 10% लोग बहुत कामयाब हैं, 90% लोग कामयाब बहुत कम है। क्योंकि वो काम करते हैं जिनमें उनको मजा आता है। 10% लोग वो काम करते हैं जिनमें उनको मजा नहीं आता है, पर लाइफ बढ़िया बन जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर छोटे मोटे मजे लेने हैं फिल्में देखने वाले, तो भाई फिर दुनिया के जो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना, वो मिस कर जाएंगे हम अपनी लाइफ से। कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट डिस्ट्रॉय योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। शॉर्ट टर्म की जो इंजॉयमेंट है ना, वो लंबे समय की जो सक्सेस है उसको खत्म कर देती है। तो भाई बोरिंग तो है, इसका कोई इलाज नहीं है कि हम यहाँ पे करण औजला का गाना चलाएं। बोरिंग तो है, बोरिंग है, इसीलिए 10% लोग कामयाब हैं। सबके घर पे एसी क्यों नहीं है? क्योंकि एसी का बिल 15,000 आता है, और वो तब भरा जाएगा जब हम बोर होंगे।
सबके घर पे गाड़ियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि गाड़ियों की ईएमआई, गाड़ियों का खर्चा लाखों में है। वो तभी दिया जाएगा जब हम बोर होंगे। आज भी हमारे पेरेंट्स की एज 50-60 साल हो गई है, उनको क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि उनके बच्चों को इंटरेस्टिंग काम पसंद है, बोरिंग काम उनके बच्चों को पसंद नहीं है। इसलिए उनको 60 साल की उम्र में भी सुबह उठ के जाना पड़ता है। और बच्चा उस टाइम पे फोन चला रहा होता है, मूवी देख रहा होता है, उसको शर्म नहीं आती भी मेरा बाप सुबह 60 60 साल की उम्र में भी उठ के जा रहा है 6 बजे, और मैं मजे ले रहा हूँ जिंदगी के। और ये क्या मजे हैं? ये मजे हैं क्या? अगर ये मजे हैं तो जो लोग पेरिस में घूम रहे हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? क्लियर सी बात है ना, माइंड सेट का खेल है सारा। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, अपने पेरेंट्स को देखने की जरूरत है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात है। बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन कि ट्रेनिंग लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखो, फॉरएवर बिजनेस दुनिया का डिफरेंट है। जो भी हमने आज तक करा है 18 साल में, अगर हमें कुछ डिफरेंट करना है तो हरकतें भी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। सीखना पड़ता है, तभी फॉरएवर में ग्रोथ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप सो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, है ना। और आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक डाउट जो भी आपके माइंड में लेके बैठे होंगे, तो धीरे धीरे आपके क्लियर हो ही रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। जो मैं बहुत बहाने देती थी, है ना, सभी सीनियर को मैंने बहुत बहाना दिया इस चीज का। तो काफी सारे सर हमारी टीम में ना हाउसवाइफ्स आती हैं, जॉब पर्सन्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये रीजन होता है कि हमें पैसा तो कमाना है, हमें अर्निंग करनी है, हमें अच्छा लाइफस्टाइल भी बनाना है। तो हाउसवाइफ का रीजन होता है कि उनके पास घर के काम है। स्टूडेंट का रीजन होता है हमारी स्टडी है। जॉब वाले पर्सन का रीजन होता है कि हमारी जॉब है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते, तो उनको ये लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो सर हम कैसे उन पर्सन को आंसर दे सकते हैं कि वो अपनी स्टडी या घर के काम या जॉब के साथ साथ भी फॉरएवर को इजिली कर सकते हैं? तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहो? देखो, ये क्वेश्चन ना लगभग सबका होता है। मैं इसका रीजन बता देता हूँ पहले क्या है। जिसका भी ये क्वेश्चन आएगा ना कि मेरे को टाइम की प्रॉब्लम है, उसने टाइम मैनेजमेंट बुक पढ़ी ही नहीं है। पढ़ी नहीं होगी कभी टाइम मैनेजमेंट, जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, है ना। क्योंकि टाइम क्या है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, आपको भी मेरे को भी। अब मान लो एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के पास पूरे दिन में कितने घंटे काम होता है? क्योंकि मेरी मदर भी एक हाउस वाइफ है। क्लियर है ना जी। मान लो 8 घंटे काम होता है, मान लेते हैं, वैसे कम होता है, हम मान लेते हैं 8 घंटे काम है। चलो, 8 घंटे हमने काम कर लिया। अच्छा, 8 घंटे हम सो लिए। 8 और 8 16। वैसे तो 24 घंटे होते हैं ना। पीछे कितने बचे? 8 घंटे। चलो, 8 घंटे में से 4 घंटे और निकाल दो, नहाना वगैरह जो भी है ना काम करना है वो उसमें कर लिए। फिर भी 4 घंटे बच रहे हैं। उस 4 घंटे में से 1-2 घंटा फॉरएवर की ट्रेनिंग लगानी है। तो टाइम तो मैनेज हो गया हाउस वाइफ का। अब स्टूडेंट की बात करते हैं। सबसे पढ़ाकू इंसान जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, मतलब उससे ज्यादा कोई पढ़ ही नहीं पाता, वो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे पढ़ पाता है। जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ रहे वो तो है ही नहीं। मान लो 8 घंटे उसने पढ़ाई करी, है ना, बंदा 8 घंटे, या फिर लगा लो 8 घंटे को उसका कॉलेज है, 4 घंटे वो घर पे आके पढ़ लिया, 12 घंटे हो गए। 8 घंटे वो सो लिया, 12 और 8 20 घंटे हो गए। 4 घंटे उसके पास भी बच रहे हैं। और ये उसके लिए है जो बहुत तगड़ा टॉपर लेवल का है, उसका बता रहा हूं मैं। जो एवरेज है वो नहीं इतने पढ़ते हैं, वो तो मतलब नॉर्मल पढ़ते हैं। ये वो है जो पूरा दिन पढ़ाई पे ही बैठा है, वो भी 4 घंटे निकाल सकता है। अच्छा, जो जॉब पर्सन है, देखो मैम, सारी बात है प्रायोरिटी की। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो घर के काम भी करती हैं हाउस वाइफ, जॉब भी करती हैं, घर के काम भी मैनेज कर रही हैं, और भी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, और फॉरएवर भी कर रहे हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरा दिन फ्री हैं फिर भी उनके पास टाइम नहीं है। टाइम इज इक्वल टू प्रायोरिटी। टाइम वही इंसान देगा जिसकी प्रायोरिटी है काम में, जिसको करना है वो तो टाइम मैनेज करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहाना है, मैं तो इसको यही मानता हूँ। क्योंकि करने वाले मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप काम क्यों ढूंढ रहे हो? मतलब कैसा सा दिमाग है लोगों का, भाई मेरे पास टाइम नहीं है और मैं काम ढूंढ रही हूँ। तो आपको क्या लगा था लोग आपको बिना टाइम के पैसा दे देंगे अगर आप काम ढूंढ रहे थे? तो फॉरएवर में भी तो आप काम ढूंढते ढूंढते आए ना। ये एक्सक्यूज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन होता है बंदे का जिसकी वजह से वो टाइम का बहाना दे देता है, ये चीज है। बिल्कुल सही बात है, तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपका
और होप्स होप सबका टाइम निकल भी जाएगा, अगर जिनका थोड़ा उतना टाइम रह भी गया है ना, तो ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो सर नेक्स्ट जो हमारा सर क्वेश्चन है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, और मेरी टीम में कितनी लड़कियां आई कितने लड़के आए, तो उनके माइंड में भी ये चीजें चलती हैं। जब हम फॉरएवर को देखते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, है ना, तो हमें अच्छा लगता है बिजनेस करना, ट्रेनिंग्स लगाना। बट कहीं ना कहीं मार्केट में ना कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। तो कई बार हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्होंने फॉरएवर पहले भी करी थी, है ना, और कई बार हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मार्केट की जो बैड एक्सपीरियंस है, उस चैलेंज को कैसे फेस करे एक पर्सन, जिससे वो अच्छा आंसर दे पाए। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, अब हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि भाई मार्केट से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसका रीजन बताता हूँ क्या है। मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगा, चैट बॉक्स में बताना। मान लो 100 लोग आईएएस बनने गए हैं, आईएएस की कोचिंग ले रहे हैं 100 लोग। क्या 100 के 100 लोग आईएएस बन जाएंगे क्या? कितने बनेंगे 100 में से? चैट बॉक्स में बताओ सभी। अब यहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं, कोई बोल रहा है एक बनेगा, ज्यादातर एक ही आ रहा है, कोई दो भी नहीं बोल रहा है। मतलब 100 में से एक बंदा आईएएस बनेगा, 99% उसमें से क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। राइट जी। ऐसे ही डॉक्टर की सिचुएशन में होगा। डॉक्टर सभी नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनने जाएंगे तो। इंजीनियर भी सभी नहीं बनेंगे। तो क्या जब सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन करेंगे, क्या सारे के सारे मैनेजर बन जाएंगे? आंसर आएगा नो। हर बंदा मैनेजर नहीं बन सकता। मान लो 100 लोगों ने फॉरएवर को ज्वाइन किया, 20 लोग मैनेजर बन गए, 80 लोग फॉरएवर में फेल हो गए। अब फेल होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन तो नहीं है फेल होने का ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब होगा क्या, जो वो 80 लोग फेल हुए हैं, वो अपनी गलती नहीं निकालेंगे कि भाई हम क्यों फेल हुए। वो क्या बोलेंगे? काम बेकार था, ये था वो था, बहुत सारे रीजन देंगे। राइट। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं जब +2 क्लास में था, तो भाई मेरी ना इकोनॉमिक्स में री आ गई। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, उसमें री आ गई। मेरे नंबर बहुत कम आए। तो मेरे पापा ने पूछा भाई तेरी री क्यों आई, बाकी बच्चे तो पास हो गए। मैं कहा टीचर बढ़िया नहीं था। क्या बोला मैंने? मैं कहा टीचर नहीं बढ़िया था, उसकी बनती नहीं थी मेरे साथ, इसलिए उसने मेरे को पढ़ाया नहीं और मैं फेल हो गया। लेकिन हमारी ही क्लास में एक बच्चे के 97 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, हमारी ही क्लास से। उसको भी सेम टीचर ने पढ़ाया था। तो अगर टीचर में कमी होती, स्कूल में कमी होती, तो उस बच्चे के 97 कैसे आ गए? मेरे तो 7 आए खाली, उसके 97 आए। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि फेलियर इंसान जो होता है ना मेरे जैसा, वो हमेशा दूसरे की तरफ उंगली करता है, भी इसकी वजह से मैं फेल हो गया। क्लियर है जी। एक तो ये कारण है कि भाई हमें मार्केट में नेगेटिविटी मिलती। एक इससे भी खतरनाक रीजन है जो आपको बताने वाला हूं। मैं तो मान लो मैं फेल हो गया, तो मैं तो नेगेटिव हूं उस काम को लेके। चलो मैं किसी को नेगेटिव नहीं करूंगा, पर मेरे जो दोस्त है ना, जिन्होंने मेरे को फेल होते हुए देखा है फॉरएवर में, वो मेरे से भी ज्यादा नेगेटिव है। मतलब एक तो मैं हूं, मैंने तो खुद करी है, तो मैं क्या क्या पता उसके बारे में इतना नेगेटिव ना बोलूं, क्योंकि मेरे को उसकी अच्छी बातें भी पता हैं फॉरएवर की। मैं बुरी बात नहीं बोलूंगा। लेकिन जिन्होंने मेरे को काम करते हुए देखा और मैं उनके सामने फेल हो गया, उनके माइंड में तो बहुत गलत इमेज बन गई भी, यार हमारे दोस्त ने इस काम को किया था और उसका तो कुछ नहीं बना। और ज्यादातर लोगों को ऐसे ही लोग मिलते हैं जिन्होंने खुद नहीं करी है, किसी को फेल होते हुए देखा है। ज्यादातर फैमिलीज में यही है प्रॉब्लम। तो भाई इसका सिंपल सा सोल्यूशन पता क्या है, मैं आपको बताऊं। अगर अगर आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको फॉरएवर को लेके नेगेटिव बोल रहा है, आपने उससे 3 सवाल पूछने हैं। पहला, ईगल मैनेजर की क्वालिफिकेशन बता क्या है। दूसरा, RG+ प्रोडक्ट किसने बनाया है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये बता। तीसरा, फॉरएवर के पास कितने शिप और कंटेनर हैं और कितने रिजोर्ट्स हैं ये बता। अगर उसने इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, मतलब उसको फॉरएवर की नॉलेज है, तो उसकी बात मान लो। और अगर उसने आंसर ना दिए फिर देखो भाई माननी है या नहीं माननी है, देखो है ना, क्योंकि उसके पास नॉलेज तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। और कई लोग आपको ये भी बोलेंगे, मैंने ना बहुत टाइम पहले करी थी, मैं भूल गया। फिर आपने उसको पता क्या बोलना है? 8 का पहाड़ा सुना,
8 का टेबल, वो बोलेगा 8 1 जा 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। कहते ये तो नहीं भूला तू, फोर्थ क्लास में सीखा था, 2 साल पहले करी हुई फॉरएवर कैसे भूल गया? क्लियर सी बात है ना जी, मतलब उसको याद ही नहीं है, उसने नॉलेज ही नहीं ली। जो इंसान बिना सीखे एग्जाम देगा, कितने नंबर आएंगे? 0। ये बात है मैम। तो लोग सीखते नहीं है, जैसे आपने बताया बोरिंग है ना ट्रेनिंग, तो बिना सीखे ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर लोगों को बाहर जाके बोलते हैं काम बेकार। अगर काम बेकार है तो हम कैसे कामयाब हो गए? कंपनी 46 साल से कैसे चल रही है? 160 देशों में कैसे चल रही है? कंपनी की ग्रोथ कैसे होती जा रही है? इतने मैनेजर्स कैसे बन रहे हैं? अगर काम बेकार है तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोगों को नहीं देखते हैं, फेलियर लोगों को देखते हैं। रीजन क्या है? फेलियर हमारा मामे का लड़का है, और सक्सेसफुल ये आपके सामने बैठा है, इसको आप जानते नहीं हो। कामयाब इंसान हमारा रिश्तेदार नहीं है, फेलियर हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार पे ज्यादा विश्वास है, चाहे वो फेल हो गया हो। रीजन ये है। तो ये चीज है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है ना। जब मैंने फॉरएवर को देखा था, तो मेरी ही मासी की लड़की ने फॉरएवर को देखा हुआ था और ट्रेनिंग्स लगाई हुई थी, बट उसने करा नहीं था। तो वहां पर मेरे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो बट मैंने सीनियर्स का कहना माना है ना, उनसे अपने क्वेश्चन क्लियर करे और एक समझदारी सुनी। लाइक 18 साल से तो ऊपर हम है ही है ना। और इतनी तो हमें नॉलेज है कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर सच होकर भी अगर आप ये सोच रहे हो अनजान बन रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो करना ही नहीं चाहता बंदा, है ना। तो ये एक्सक्यूज ज्यादा आ जाता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट में देखो, अगर एक असली चीज है तो नकली चीज भी है। ठीक है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अगर सक्सेस है तो फेलियर भी है। तो हमें उस चीज को लेकर चलना है। क्लियर है? तो इस चीज को देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन रह चुके हैं, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा मेरे पास आया था। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, मेरे को ऐसा फील होता था, क्योंकि मैं क्लास में भी इतना बोलती नहीं थी, मैं इंट्रोवर्ट लड़की थी, है ना। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि सारे कर रहे हैं, फॉरएवर तो चल रही है, फॉरएवर में लड़कियां कामयाब भी हो रही है, तो मेरे को अपने ऊपर ही डाउट था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो सर ऐसी ना बहुत सारी लड़कियां हमारे बिजनेस में आती हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट है, और कई लड़के भी आते हैं, तो उनको ना अपने ऊपर ही डाउट आ जाता है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता कि मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ या नहीं। तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे कि हम अपने ऊपर कैसे सेल्फ डाउट हटा सकते हैं? देखो, ये डाउट आना ना आम बात है। ये मैं बता देता हूँ क्यों है। क्योंकि हमारा जो सोच है ना, हमारी जो मैंने बताया था परवरिश हुई है, वो जॉब के हिसाब से हुई है। अचानक से हमारी जिंदगी में बिजनेस आ गया तो डाउट आना लाजमी है, सेल्फ डाउट आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? आपको फॉरएवर की प्रॉपर नॉलेज लेनी है, प्रॉपर नॉलेज लेनी है। दूसरा स्टेप है, हमें ना अपनी संगत को बदलना पड़ेगा फॉरएवर में आके। हम क्या करते हैं, हम फॉरएवर को ज्वाइन कर लेते हैं, पर उसी संगत में रहते हैं जिसमें पहले थे, मतलब फ्रेंड सर्कल, वही बातें वही सारी चीजें चलती रहती हैं। और वो हमें विश्वास दिलाते रहते हैं भी इस काम में तेरा कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसे ही होता है, तेरा कुछ नहीं होगा, फाल देख लियो तू 3 महीने बाद छोड़ देगी, 2 महीने बाद छोड़ देगी। ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के ना हमें लगने लग जाता है यार, इतने सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कहीं सच में ना हो जाए। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कहीं सच में ना हो जाए। तो वो जब नेगेटिविटी सुन सुन के माइंड में बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो बंदे को लगता है यार नहीं मेरे बस का नहीं है। जबकि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप बोल, अब आपके माइंड में आएगा इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने का एक ही तरीका है, मेरी तरफ देखो ध्यान से, कानों पे हाथ रख लो, किसी की नहीं सुननी है, कोई नेगेटिविटी दिमाग में नहीं जाएगी, सिर्फ ट्रेनिंग सुननी है। सीनियर जो जिन्होंने आपको फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताया है, उनकी बातें सुनो, उनके साथ कनेक्ट रहो, तो आपको लाइफ में कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आएगा। सेल्फ डाउट हमेशा उसको आता है जो बाहर के लोगों की बातें सुनता है, फॉरएवर से बाहर के लोगों की सलाह मानता है, फॉरएवर से बाहर के लोग जो बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देता है, नेगेटिविटी को सर्च करता है यूट्यूब पे, नेगेटिव चीजें सुनता रहता है, वो ही इंसान फॉरएवर को लेके डाउट में आता है। जो ट्रेनिंग ध्यान से लगा रहा है, अपलाइन की बात सुन रहा है, अपलाइन के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट है, अपनी अपलाइन से टाइम टू टाइम बात करता है, उसको कभी सेल्फ डाउट आ ही नहीं सकता। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा कि यस,
अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि हमारे अंदर दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंसान, एक होता है पॉजिटिव इंसान। हम जिसको ज्यादा डाइट देते हैं वो दूसरे वाले को हरा देता है। नेगेटिव वाले की डाइट क्या है? नेगेटिव बातें। पॉजिटिव वाले की डाइट क्या है? पॉजिटिव बातें। हम जो ज्यादा सुनेंगे वही जीत जाएगा हमारे अंदर। तो पॉजिटिव ज्यादा सुनो, नेगेटिव तो बिल्कुल मत सुनो। चाहे कोई बोल भी रहा है, अपने आप ही आपका सेल्फ डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल। बिल्कुल सही बात है। और होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लड़कियों के अंदर, है ना? क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरे को सबसे ज्यादा डाउट था कि मैं किसी के सामने कैसे बोल पाऊंगी, मैं किसी के सामने कैसे कैमरा फेस करूंगी, है ना? मेरे को भी बोलना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये नॉर्मल है। जैसे सर ने बताया कि लैक ऑफ नॉलेज के साथ हमारा, जब नॉलेज होती है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है हमारी लाइफ में, है ना? तो फोकस करना है कि नॉलेज बढ़ानी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इंडिया वालों का सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? और ये क्वेश्चन आता है सर, जब भी हम किसी न्यू पर्सन को बिजनेस दिखाते हैं तो ना एक चीज उनके दिमाग में बैठी होती है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, कि यहाँ हमें पैसे भी देने पड़ेंगे क्या? तो कई बार लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस तो नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे सर? ये इन्वेस्टमेंट फॉरएवर एक इन्वेस्टमेंट है या नहीं? देखो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है वैसे फॉरएवर में, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। पर बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस के साथ ना इन्वेस्टमेंट वर्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना हमने एक चीज समझनी है, जो मैं हमेशा ट्रेनिंग में समझाता भी होता हूँ। दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैंने समझाया ना बहुत बार। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, हमें कंपनी भी खुद बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी खुद बनाना पड़ेगा, सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा, उसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, कंपनी बनी बनाई मिल गई, प्रोडक्ट भी बना बनाया मिल गया, अब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहाँ करोगे? क्लियर है। और कई लोग क्या होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, वो शॉपिंग को भी इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे मैं अभी एक लड़की को फॉरएवर समझा रहा था, तो उसने बोला इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कह रहे सर प्रोडक्ट तो नहीं लेना है। मैं क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कह रहे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी ना, प्रोडक्ट तो नहीं लेना। मैं क्या मैम, आप जो सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो वो आप खरीद के लाते हो या घर पे बनाते हो? कह रही मैं तो खरीद के लाती हूँ। मैं क्या वो इन्वेस्टमेंट है या शॉपिंग है? कह रही वो तो शॉपिंग है। मैं क्या अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो शॉपिंग है, अगर फॉरएवर का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है? मतलब इतने खतरनाक लोग हैं। कह रहे क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाना शॉपिंग है, फॉरएवर का शैम्पू लगाना इन्वेस्टमेंट है। ये कौन सा दिमाग है? मतलब क्या है जी, शॉपिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। शैम्पू आप दुनिया में कोई भी खरीद लो उसको शॉपिंग ही बोलोगे आप। कोई भी फेस वॉश खरीद लो वो शॉपिंग ही है। कोई भी अपना टूथपेस्ट खरीद लो शॉपिंग ही है। क्लियर है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट शॉपिंग है। ये चीज है। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा, है ना? कि फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट होती तो ट्रेनिंग में भी पैसे लेके बिठाया होता इस टाइम, है ना? तो होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। हाँ जी, एक्टिव है सभी? मीटिंग में ही है सभी? हाँ जी। तो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आप सभी के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं मेरे को। ओके जी, ओके ग्रेट। ठीक है जी, मजा आ रहा है। ओके जी, ओके ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी नहीं है, एक टिप है जो आप दे सकते हो, है ना? तो जितने भी लोग यहाँ पर नोवस कस्टमर हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, है ना? जितने भी पर्सन, हर लेवल के पर्सन इस मीटिंग में बैठे हैं, तो अगर हमें फॉरएवर में अच्छे तरीके से ग्रोथ लेनी है, फॉरएवर को अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमें कौन से तरीके फॉलो करने पड़ेंगे? क्या चीजें करनी होगी और क्या गलतियां नहीं करनी है? तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे कि हमें कैसे फॉरएवर में हम सक्सेस ले सकते हैं? देखो, फॉरएवर में सक्सेस लेने के लिए ना बिल्कुल आसान चीजें बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है जी, लिख लेना, समझ लेना, दोबारा दोबारा, है ना भाई, पता नहीं कब मौका मिलेगा। ठीक है। पहली चीज क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल रखना है। 80% सीखना है,
इस बिजनेस को 80% लर्निंग, 20% वर्किंग, इस मॉडल पे काम करना है। 80% सीखने पे ध्यान देना है, 20% करने पे ध्यान देना है। पहली चीज तो ये करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, यहां पे किसी की बातें सुन के ना नेगेटिव होना है ना पॉजिटिव होना है। हमेशा फैक्ट पे ध्यान देना है, नॉलेज पे ध्यान देना है। ठीक है ना जी। ये बिजनेस मूड के हिसाब से नहीं चलेगा, डिसिप्लिन से चलेगा। डिसिप्लिन का मतलब है चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको इस काम को करते रहना है, सीखते रहना है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको अगर सपोर्ट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सपोर्ट नहीं मिल रही है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप सक्सेस हो जाओगे, सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगी। तो आपने बिना सपोर्ट के इस काम को आप कर सको, अपने माइंड को इतना स्ट्रोंग बनाना है, ना कि सपोर्ट के लिए रोते रहना है। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरा भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बहन सपोर्ट नहीं कर रही। उस चीज को रोने से बढ़िया है आप अपने दम पे इसको, अपने आप को सक्सेस करो इस काम में, वो लोग ऑटोमेटिक ही सपोर्ट करने लग जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है, ये तीन चीजें कर ली। चौथा पॉइंट बहुत आसान है। अगर आप अपनी अपलाइन की बात सुन के चलोगे तो आप 5 साल वाली सक्सेस को 1 साल में अचीव कर लोगे। अगर आप अपनी अपलाइन की बात सुन के नहीं चलोगे, आप 1 साल वाली ग्रोथ में 5 साल लगा दोगे। तो हमने अपनी अपलाइन, जो जो हमें बिजनेस में लेके आए हैं, जो हमारे ऊपर सुपरवाइजर्स एक्टिव हैं, जो हमारी मैनेजर अपलाइंस हैं, उनकी बातों को सुन के, जो बस सुन के और उस पे ही इंप्लीमेंट करते रहना है। सिंपल तरीका तो यही है फॉरएवर में कामयाब होने का। इससे अलग आप कितना ही दिमाग लगाते रहो, कितने ही एक्सपेरिमेंट करते रहो, कितनी ही मेहनत करते रहो, जो मर्जी करते रहो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है, चाहे आपको कितना ही टाइम हो जाए। मतलब कामयाब लोग अलग काम नहीं करते हैं, कामयाब लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, कामयाब लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। तो हमने काम चेंज नहीं करना है, काम को करने का जो तरीका है उसको अपलाइन के हिसाब से करना है, तो हम सक्सेस हो जाएंगे। सिंपल। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा टिप्स दिए सभी को, है ना। तो होप सो दोस्तों आपके सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, है ना। और जितने भी सर ने हमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, है ना, एक एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। और आप इस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करना, कि अगर आपके साथ भी ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके आंसर्स दे सकते हो, है ना। और लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे कि जिस जिस पर्सन ने इस मीटिंग को अच्छे से लगाया है, जो भी आपको अच्छा लगा है, जो भी आपको बेस्ट लगा है, वो अपने सीनियर के साथ जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में फीडबैक जरूर दें, ताकि पता लगे कि आपने अच्छे से ट्रेनिंग को लगाया या नहीं लगाया। सिर्फ एक ही चीज है, जब भी आप फॉरएवर को देख रहे हो, फॉरएवर को समझ रहे हो, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखें, सिस्टम पे बिलीव रखें और अपनी अपलाइन पे बिलीव रखें। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये तीनों चीजों पे आपके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आपको फॉरएवर में कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाएं, ट्रेनिंग का पार्ट बने, फॉरएवर को क्लैरिटी करें, दिल से तसल्ली करो फॉरएवर की, देन यू कैन स्टार्ट। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों एक बेस्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट, और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो होप सो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, और अपने फीडबैक अपने सीनियर को जरूर शेयर करें। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी।